Good morning, students. Let's continue with the topic that is our Microsoft Access. Earlier, we just studied about that. What are the features of the Microsoft Access and why we are using this, and how to create Access with the help of templates. And today we will learn about that, how to create our blank database. In this, firstly we are opening our Access by pressing the start button. Pop-up menu appears, and from there we select that where is Microsoft Office. Press Microsoft Office, and then again here it is Microsoft Access. Here it is blank database. We just double click on that blank database. We have database here. In this view, we can create our database by two ways. In this, we are creating our new table, and we can create it by two views. One is our data sheet view, which we are using to create tables quickly, consisting of few fields, and another one is design view. In that, we are creating tables for greater control in it, और structured way में, that means बहुत सारे rules and regulations के साथ. But in data sheet view we can create tables very quickly, and few of the tables हम इसमें create कर लेते हैं. Like Excel we can create tables quickly, in the same way data sheet view में हम कर सकते हैं. I'll show you the different also in both the views. Firstly we'll go for the data sheet view. At here file, home, and after that create is there in the ribbon. See, press that create, and here table is there, second option. Then we press on the table and we will get the table view there. And here see that table 1 also shows. Then we double click on the column header, जिस पे हमारा आईडी के नाम से जो आ रहा है हमारा, जहां हमने अपने फील्ड का नेम देना है, क्रिएट अ फील्ड नेम. डबल क्लिक ऑन दैट एंड टाइप द नेम विच यू वांट. हम अपने टाइप कर देंगे नेम अकॉर्डिंगली जो हमने देना है इसको नाम. वी गिव द नेम स्टूडेंट आईडी, एंड देन वी प्रेस द एंटर बटन. After giving the name, we press the enter button. For next field, it asks from us that what type of data type you want to choose. Next column के लिए ये हमसे पूछता है कि आपको कौन सी तरह का डाटा टाइप इसके लिए चूज करना है. Like we want show text type in which number and text both comes, and then we give the field name like name of the students. Then for next again it asks from us every time when we give the id to the our columns heading. जब भी हम देंगे अपनी, तो वो हमसे पूछेगा कि what type of text you want. Like at here I am giving firstly choosing number, and then I am giving roll number. After giving these headings, I selected entering the data. लाइक नेम में मैंने सबसे पहले लिखा. बाय डिफॉल्ट ये हमारी स्टूडेंट आईडी 1 2 3 ये कंटिन्यू में रखेगा. नाउ रोल नंबर के लिए मैंने चूज किया है क्या, नंबर. तो मैं जब इसमें अपना टेक्स्ट लिखना चाहूंगी ना, एंटर करूंगी, ये मुझे एरर शो करेगा. द वैल्यू यू एंटर डज नॉट मैच द नंबर डाटा टाइप इन द कॉलम. हमने तो नंबर के लिए डाटा टाइप किया है इसमें, लेकिन वो इससे मैच नहीं हो रहा है. तो हमें क्या करना होगा, एंटर न्यू वैल्यू. तो वो तभी लेगा जब मैं इसको न्यू वैल्यू दूंगी, न्यू नंबर दूंगी. देखो नंबर दिया तो ये कंटिन्यू करेगा. इन द सेम वे हम इसमें कंटिन्यू करते रहेंगे और अपनी टेबल बना सकते हैं. नाउ यूजिंग द डिजाइन व्यू. डिजाइन व्यू में क्या होता है, हमारे पास टू पेन्स अपीयर होते हैं. वन इज अपर पेन एंड अनदर वन इज लोअर पेन. इसमें क्या होता है, द सेम वे जैसे हमने बनाया है इसको,
हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन है, होम बटन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, टेबल डिज़ाइन, देन प्रेस इट एंड ये हमारा टेबल डिज़ाइन व्यू आ गया। देखो ये इसमें हमारे 2 जो हैं पेन्स हैं, ये हमारा ये जो सेलेक्टेड सा पार्ट लग रहा है, जो हमारे एक्सेल में जैसे हम रो कहते थे, इसको हम कहते हैं फील्ड ग्रिड पेन। ये हमारा क्या है, फील्ड ग्रिड पेन या फिर अपर पेन। एंड ये हमारे क्या है, फील्ड नेम कॉलम, इट्स आर डाटा टाइप कॉलम। और ये डिस्क्रिप्शन के लिए जो भी हम यहाँ देंगे, इसमें कॉलम नेम देंगे तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये किस तरह का। और ये जो है हमारा, इसको हम लोअर पेन भी कहते हैं और इसको कहते हैं फील्ड प्रॉपर्टी पेन। जो भी हम यहाँ पे अपना फील्ड नेम देंगे और फिर हम उसकी प्रॉपर्टी डाटा टाइप, जैसे मैंने आपको अभी बताया था नंबर सेट किया रोल नंबर के लिए तो वो नंबर टाइप ही लेगा, तो यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन भी दिखाता है। ये हम कैसे बनाते हैं, मैंने आपको जैसे बताया, क्रिएट पे क्लिक किया हमने, डिज़ाइन व्यू हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ये विंडो अपीयर हो गई। देन स्टार्ट टाइपिंग द नेम, फील्ड में हम जो है आईडी, जो हमें कॉलम के नेम देने हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी, वो हम देना स्टार्ट करेंगे, स्टूडेंट आईडी, हियर इट इज। अब इसमें हम क्या प्रेस करते हैं, ऑन द प्लेस ऑफ एंटर बटन वी आर प्रेसिंग टैब। जैसे उसमें पूछा था, इसमें भी हमसे पूछता है कि व्हाट टाइप ऑफ डाटा यू वांट टू गिव। स्टूडेंट आईडी है तो हमने स्टूडेंट आईडी इसमें दी है। स्टूडेंट आईडी हमारी किस में चलती है, नंबर फॉर्म में चलेगी, नंबर, ठीक है। ये हमारी डिस्क्रिप्शन बाय डिफॉल्ट अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेगी। अब हमने इसमें नंबर दे दिया, एंड इफ यू वांट टू चेंज डाटा टाइप देन देयर इज द ऑप्शन वी कैन चेंज इट अगेन ऑल्सो बाय प्रेसिंग दैट एरो बटन। हम इसमें से चेंज भी कर सकते हैं। एंड आफ्टर सेलेक्टिंग द डाटा टाइप प्रेस द टैब की टू मूव टू इंसर्शन पॉइंट। जो हमारा डिस्क्रिप्शन एरिया है यहाँ पे आ जाएगा हमारा कर्सर। जब हम फिर से टैब पे करेंगे, हमें इसके बारे में अगर कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है, लाइक हमें अभी हमने स्टूडेंट आईडी बनाया था तो हम इसकी क्या डिस्क्रिप्शन देंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट। जैसे आप लोगों की स्कूल में बनी हुई है आईडीज, वो आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन होती है ना, उसी तरह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, here it is। and then again we will press tab for the new field name, like now I want name of student, and press। then again हमारे पास यही पूछेगा कि किस में देना, तो ये हम टेक्स्ट फॉर्म में देंगे। then again we'll give the description at here। description part is optional, it's on us we want to give or not। and then in the same way we'll make the table, and at here it shows us the description related to our data type, कि क्या इसमें रिस्ट्रिक्शन है, क्या होगा। लॉन्ग इंटीजर टाइप हम इसमें दे सकते हैं, और इसमें क्या है हमारा रिक्वायर्ड है कुछ, नो डुप्लीकेट, मतलब ये हमारी हर डाटा टाइप की अलग होती हैं। रिक्वायर्ड, एलो, ज़ीरो लेंथ, येस। फील्ड साइज इसमें पर्टिकुलर फिक्स है कि हम 255 ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। In this way we can create our tables in 2 views। I hope you can understand and try this at your home also। Thanks, and try this also।